देखिए हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है जो ये बच्चा हम लोग के स्कूल में पढ़ सर अलॉन्ग विद द पेरेंट्स सर जिमी सर पेरेंट्स को भी साथ में रखिए प्लीज एवरीवन प्लीज क्लैप योर हैंड्स एवरीवन प्लीज वंस अगेन क्लैप फॉर स्मॉल बॉय। इसके साथ मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा ये बच्चे के बारे में। देखिए मैं जब भी बाहर निकलता हूँ कभी भी मैंने अगर इस बच्चे को देखा है रास्ते पे अगर ग्रुप में 8-10 बच्चा खेल रहा है ऐसा बहुत बच्चा है जो हमारे स्कूल में पढ़ता है बहुत कोई और स्कूल में पढ़ता है लेकिन ये बच्चे को मैंने देखा है ये दौड़ते हुए आगे बढ़ के आता है हमारे पास सलाम करता है विद प्रॉपर सिस्टम हाथ बढ़ा के ग्रीटिंग्स के साथ हैंडशेक करता है और सलाम करता है। अभी हाल ही में ही मैं 2 दिन पहले उधर से गुजर रहा था इस बच्चे को देखा लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि किसी को ये अवार्ड मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल तरबियत। थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट फॉर द ड्रामा। Hello. Isla, so our topic for today will be social media and its effects on youth. So Mehdi, what are some social media platforms? Some social media platforms are Instagram, Facebook, Twitter, etc. Okay, so which one is the most popular or addictive that I should share? Decade ago it used to be Facebook, but now I think it will be Instagram. Okay, so you think Instagram? Anas, why do you think that he said Instagram? I think he said Instagram because we are used to be a rap which got huge high quality talk got banned. Indian then cool after this is Instagram. Got all the hype because they introduced one new rules required to similar to TikTok. Real? Okay, what are they? Please explain. Raise our kind, mainly they are one person who create them, it's smiley their dancing voice, scanned from movie or TV show. Now discuss about some pros and cons of social media. Has some positive aspects also. What would you like to say about them, Arman? Yes, definitely. Everything has its positive and negative, and social media has its own pros. To like, we can keep our old friend and we can communicate anyone around the globe. Totally agree. Now Mehdi, still one of the cons. Cons, I would say it is platform self-control where people post their photos of each everything they do, they go, they eat, will be, and everywhere they go. Yeah, and the fact that every generation get addicting and our youth is alarming. Though the Muslim youth should be really conscious about these things, but we are also just following crowd. So you are saying our Muslim youth is not conscious. So what should they be conscious about, Arman? Conscious about the deed we are doing here, and fifthly we watch there and try to meet without realizing, and we need every needed with doing here. Yeah, so we are ignoring. Anas, can you tell a reason why our youth is so ignorant? I think we parents are right that these things are rooted or normalized in our society, and maybe we haven't realized the major sins or prohibited in our Islam. I have seen parents getting amused and praising their children while doing such stuff. So what do you think? Parents should be here, Mehdi? I am not saying that they should be convenient or twisted. It is just about inculcating economic values in them, making of sins and writers. I think we should work upon a character and make it strong enough so my differentiation between right and wrong. Don't start bussing them, they will don't understand. It is intentionally have patience and they will at least we are doing their in hard. But at least tell them it is wrong because that is a duty. If is not able to do so and it is the weakness of faith. Why do you think parents are ignored, etc.? I think we did not get the environment of our parents and make it pain of learning in major sins in Islam. Right. I would like to add one thing here that children nowadays are getting ungrateful to all of this because they believe whatever they see, they assume that everybody is rich, happy, beautiful and perfect tension-free life. Although they are not the reality, all people only show the bright sunny days as nobody wants to show the dark blue inside which is filled in innumerable types of struggles. इसी वजह से लोग इंटरनेट से एहसास फरमोश हो जाते हैं और इसी के दौरान लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के अलावा स्टोरीज पढ़ते हैं, देखते हैं और मैसेजेस पढ़ते हैं और हमारे युवा के वजह से कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी नाम के बीमारियों से सामना करना पड़ता है। In addition to this, our youth is unable to adjust in realities of life, the contact with the life of fantasy, they contact with the life of fantasy. They
they did not want out of it. Now that some of the things we discussed today, social media has changed wise to better as it can make the communication faster and easier. But the vulnerable teenagers should limit the use of social media by spending less time on the internet, as it can cause a number of negative consequences. But the negative impacts on one's physical as well as mental social life outweigh advantages as mentioned. Thank you. Audience, please clap your hands. Now, I request Afrida's sister of class 10 standard to come up on the stage and give a phenomenal speech. Before this program, Wasim sir, please bring your team up. Please bring your team. So due to some technical error, दिक्कतें टेक्निकल आ सकती है, हम लोग अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं कोई भी दिक्कत ना आए। ये प्रोग्राम इससे पहले जो हो रहा था एक दिक्कत आई थी, उसको ठीक करके अभी फिर से इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। मासूम सर, प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स प्रॉपर्ली प्लीज। When it will be fully ready, then only break. Problem is there, stop at one only. Don't try again and again. We are extremely sorry for the inconveniences. Ready, everyone ready? Wasim sir? Ready sir? Ready? Ready? Ready. वो 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर वो 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर वो 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर इस्लाम के हीरो नंबर 1 असहाबे बदर जो सर्ब कफन इस्लाम के हीरो नंबर 1 असहाबे बदर जो सर्ब कफन हल्के निकले भारी निकले जैसी थी तैयारी निकले बातिल के मुकाबिल सीना सिफर 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर सर रख के हथेली पे निकले महबूब खुदा के दीवाने सर रख के हथेली पे निकले महबूब खुदा के दीवाने बेताब थे कुर्बा होने को वो शम्ए हुदा के परवाने बेताब थे कुर्बा होने को वो शम्ए हुदा के परवाने मिक़दाद खुबाब शुजा तलहा अम्मार उबैदा बिलाल अंसा अबू बकर उमर हमजा हैदर 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर बढ़कर तकबीर लिए शमशीर बढ़े जब हक के मतवाले बढ़कर तकबीर लिए शमशीर बढ़े जब हक के मतवाले पार के सरदारों के सर मिट्टी में मिला के रख डाले पार के सरदारों के सर मिट्टी में मिला के रख डाले मगरूर पड़े अबू जहल उमैया शातिर सरकश बहु शैबा मुजीब के खाका लूदा सर 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर सफ़वान उमैरा किल में जा राफ़े के खून के नजराने सफ़वान उमैरा किल में जा राफ़े के खून के नजराने शिमालैन ऑफ यजीद मुबश्शिर साद के जैसे मस्ताने शिमालैन ऑफ यजीद मुबश्शिर साद के जैसे मस्ताने शादी के मुअव्विज़ हारिसने और इब्नुल हारिस उबैदाने रब की जन्नत में पाए घर 313 का लश्कर जो अज़्म वफ़ा का था पैकर 313 का Audience, please clap your hands. 313 का लश्कर जो अल्लाह Now I would like to call Afrida Sarkar, one of my favorite student, to come up on the stage and deliver a short speech. यारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जायका आयार होगा। तुम्हारी तहजीब
अपने ही खंजर से आप ही की खुदकुशी करेगी। जो शख्स नाजुक पर आशियाना बनेगा ना पैदार होगा। अस्सलाम वालेकुम। Really, on seeing this electrifying atmosphere, my heart goes rocking with this beautiful decoration, buzzing stage, burning of passionate students, glittering dresses, and teachers of different hierarchies have left me feeling over the moon. As most of you know, I'm Afrida Sarkar of 10th standard, the examinee of 4th batch appearing next year, 2027. I would like to extend my hearty welcome to our budding talent who are ready to glitter the stage. Today, on the 5th Ishla Moshara of Jeb English Medium School, on the green lap of Sihipur, I would like to take this opportunity to address you before. Heinous evil practices prevailing till now and thereby turning the human being into horrible shape. I will tell you a story of a despaired father who had a daughter. She is in a perfect age of marriage. But owing to their financial insecurity, she couldn't get married. And unfortunately, her father went to depression. This type of cases are millions in India and are still on the rise. बेटी बोझ नहीं होती ये समाज को समझाओ। बेटी बोझ नहीं होती ये समाज को समझाओ। दहेज के आग में सपनों को ना जलाओ। इज्जत बिकती नहीं पैसों के बाजार में। इंसानियत जिंदा रखो, रिश्तों को बचाओ। डाउरी तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। दहेज को हम रस्म रिवाज बना लिए हैं, अच्छे से गौर फरमाएं। Dowry means the wealth, money or the gift which is given away by the parents of the girl at the time of marriage. It's a very old custom, but it still exists in Indian society. Now, whether the dowry is allowed or meher is allowed. As far as dowry means the money, wealth, gift which is given to the husband or to the family of the husband in order that they accept her. This is prohibited. This is haram according to Islam. Islam believes in the system of meher. इस्लाम ने दिया औरत को हक और मान, मेहर है तोहफा, ना कोई शर्मनाक दान। जो मांगे दहेज वो गुनाह का भार उठाए और जो दे मेहर वो अल्लाह को बताए। A gift to the girl is meher. Meher can be big or small depending upon the status of the husband. A girl can ask for a mountain of gold or whatever she wants. But the problem is there whether the husband agrees or not. Thereby, meher is compulsory in Islam. इस्लाम ने दिया है औरत को इज्जत का ताज, मेहर के जरिए उसका हक सजा दिया। फिर कौन है जो मेहर का दास्तूर बनाए जब रब ने इस जुल्म को हराम बताया। प्लीज तालियां बजाएं, हौसला अफजाई करें बच्चों का। Dowry is very common in India. Now, suppose you're married to a graduate, then maybe you have to pay 5 lakhs. Suppose now you're marrying an engineer, then maybe more, 10 lakhs. Or suppose you are marrying a doctor, then maybe 20 lakhs. It seems like you are selling horse and cattle in the market. ना बेटी बिकती है ना शादी बाजार है, ना बेटी बिकती है ना शादी बाजार है। दहेज का हर दावा इंसानियत पर वार है। क्या बात है। You can't give indication to the girl or to the family of the girl that my son would like to travel in a Mercedes. You are indicating that you want a Mercedes for dowry. You can't give the indication that my son wants 3-bedroom apartment. You are indicating that your son wants to live in a 3-bedroom apartment. If willingly the parents of the girl give some wealth or gift to the boy or to the husband, it's allowed, it's
want, she can do with that. Therefore, mahar is compulsory and dowry is prohibited in Islam, asking for the women. आज हम सबको यहाँ पे फैसला करना ही होगा, दहेज के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि बेटी रहमत होती है, सौदा नहीं, और शादी इबादत होती है, व्यापार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। This topic is so important that I am bound to explain this in Hindi. Sorry, I am taking a bit time, but it becomes easier for everyone to understand. आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे सोशल इशू के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो सिर्फ हम में ही नहीं बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। The issue is dowry system, दहेज प्रथा। इस्लाम एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है जो इंसान को इज्जत, इंसाफ और बराबरी सिखाता है। इस्लाम में शादी को सिंपल, पाक और बरकत वाला इबादत बताया गया है, मगर अफसोस है कि आज शादी एक बिजनेस बन चुकी है। कुरान हमें सिखाता है औरत रहमत होती है, बोझ नहीं, बल्कि हमें तो कुरान ये भी सिखाता है कि औरत का हक खुशी और ईमानदारी के साथ दिया करो। एक लड़की माँ, बहन, बेटी होती है, मगर हम दहेज के नाम पे उन्हें इज्जत नहीं, तकलीफ देते हैं। आज न जाने कितने सवाल उससे पूछे जाते हैं, न जाने कितने। लड़की ग्रेजुएट है या नहीं, काली है या गोरी है, कैरेक्टर कैसा है, स्टेटस है, और सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, कितना दोगे। लग तो ऐसा रहा है कि इंसान क्या बात है। जहेज के नाम पर जो धब्बा है, आज सभी हजरात अच्छे से उसका समाप्त फरमाएं। लग तो ऐसा रहा इंसान ही कोई डील हो। कुरान हमें सिखाता है दहेज लेना एक रिवाज नहीं, एक जुल्म है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाता है, अल्लाह ताला को जुल्म करने वाला पसंद नहीं। दहेज लेना कोई रिवाज नहीं, एक जुल्म है, एक खुला जुल्म। इसलिए इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। हम जब एक शादी होती है, समझ लीजिए वो ग्रेजुएट है, हम डिमांड करते हैं 5 लाख या 2 लाख, और अगर उसका स्टैंडर्ड और स्टेटस ज्यादा बढ़ गया, अगर वो इंजीनियर निकला फिर तो 10 लाख, और अगर वो एक डॉक्टर निकल गया तो और भी ज्यादा, शायद 20 लाख। ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज शादी या अपनी बेटी नहीं बल्कि हॉर्स और कैटल्स को हम मार्केट में बेच रहे हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी सिंपल निकाह को प्रमोट किया है। उनकी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी दुनिया की सबसे सिंपल और बरकत वाली शादी थी। ना कोई दहेज, ना कोई शौक, सिर्फ तकवा और मोहब्बत थी। तो आज हम सबको यहाँ फैसला करना होगा, सिंपल निकाह को प्रमोट करना होगा, दहेज के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और हमारे घर से, हमारे दिल से इस बुराई को खत्म करना होगा। ये याद रखिएगा, जो शादी अल्लाह के रजा के लिए होती है उसमें बरकत खुद ब खुद आते हैं। तो आज मैं यहाँ खत्म करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। ऑडियंस प्लीज क्लैप योर हैंड। देखिए, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। ये जो फैमिली से बिलोंग करती है, इसके पेरेंट्स अगर चाहेंगे तो इसको काफ़ी बाहर बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। ही इज़ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनके घर से ये और इसकी छोटी बहन आरमीन और ये अफरीदा, ये दोनों बचपन से हमारे पास पढ़ रहे हैं। इनके पेरेंट्स को हम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। शायद आज उनके पेरेंट्स को ये एहसास हो रहा होगा कि आज शायद हम लोग से वो बराबर, देखिए कितने अच्छे से वो आपके सामने एक डाउरी सिस्टम को लेके, दहेज को लेके कितने अच्छे से आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करके अच्छे समझाया, बताया, ताकि हम लोगों को समझना चाहिए जो हम लोगों का क्या हालत, सोसाइटी का क्या हालत है। तो ये बच्चे इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं स्टेज में इस तरह बोलना, इस तरह परफॉर्म करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत टफ है। हम लोग भी शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं।
हम लोगों के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती है। I will request to each and everyone to clap for once again, everyone. It was a very excellent speech. Thank you so much, Afrida, for your hard work and for your support. Thank you. We are really very proud of you. Thank you. Move. हाथ जो दुआ के लिए उठनी चाहिए थी, हाथ जो दुआ के लिए उठनी चाहिए थी, वही दहेज की लिस्ट लिखने में लग गई। काश लोग समझ पाते बेटी की कीमत, तो न जाने कितने घर उजड़ने से बच जाते। Now, engineered activity will be done by class 3 students, Rizaul and Atiq Alam, Rizwan and Rafiq. Please come up on the stage. Atiq Wahid, come near the stage. Atiq Wahid, तुम्हारी मदर तुमको ढूंढ रही है। Atiq Wahid, class 7. Atiq Wahid, come near the stage. A मर्द मुजाहिद team be ready. A मर्द मुजाहिद, शकील सर का टीम, ए मर्द मुजाहिद टीम भी रेडी। आफ्टर 2 इवेंट तुम लोगों को बुलाया जाएगा। ए मर्द मुजाहिद टीम भी रेडी। ए मर्द मुजाहिद टीम प्लीज बी रेडी। सर रेडी सर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amjad Rizwan. I read in class 3B. The name of my school is Chapter English Medium School, a unit of Chanchal Javed Educational Public Trust. Today in this special location I want to recite a hadith. Dua. Sorry. सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा, या अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। सोकर उठने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। तर्जमा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने की बाद जिंदगी दी, उसकी तरफ से सबको जाना है। थैंक यू, थैंक यू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Atiq Alam of class 3B, a student of Chapter English Medium School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is MD Azal Karim. I read in class 3B. The name of my school is Chapter English Medium School. हदीस नंबर 11, ईमानियात पर इजा सालता फसलिल्लाह। तर्जमा, तुझे जब कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला ही से मांगा कर। हदीस नंबर 12, इबादत पर अफदलुल अमाली इंदल्लाहि सलातु फी अव्वल वक्तिहा। तर्जमा, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। हदीस नंबर 13, मामलात पर तर्जमा, खुशखबरी है उसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। हदीस नंबर 14, मौसरात पर इदा दखलतुम बैतन फसल्लिमु अला अहली। तर्जमा, जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। हदीस नंबर 15, अक़लियात पर अल हयाउ ला यती इल्ला बिखैर। तर्जमा, शर्म व हया से खैर पैदा होती है। थैंक यू, थैंक यू। Audience, please clap your hands. Faith in words, action 2, teachings moral, strong and true. More than a license, a way of life, guiding us beyond all strife. Upcoming next, an English recitation by class 2 student done by Simran. Simran, please come up on the stage. Sir, just hold for a second. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Simran Khatun from class 3 of Chapter English Medium School. Today we will gather here to 5th winter carnivals of our school. So today on this special occasion of our school, I would like to recite a beautiful poem. My poem name is A Good Neighbor. To your neighbor lend a hand so that you understand. They have right we must protect, so then kindness and respect for your neighbor. Try to care when they trouble help prepare. To your neighbor give a smile, speak time with that for will. Thank you. MD Asad, Tawfiqa Yasmin, Sara Mahanaz, Hina Parveen, Rohit, come near the stage. MD Asad, Tawfiqa Yasmin, Sara Mahanaz, Hina Parveen, Rohit, come near the stage.
Rifat Ali, Abu Sufyan, MD Sahin Reja, Sabah, come near the stage. Abu Sufyan of class 3 to come up on the stage for your Diniyat activity. Abu Sufyan, please come up on the stage. सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार। इस उम्मीद के साथ आओ भूल के सारे गम, हमारे इस 5th इस्लामी मुहासरा को हम सब मिलकर करें वेलकम। ऑडियंस प्लीज गिव अ ह्यूज क्लैप फॉर द चीफ गेस्ट एंड गेस्ट प्रेजेंट ओवर हियर। Ladies and gentlemen, get ready to enjoy the program. Now program number 60 and recitation performed by class 3 student. Now I would like to call MD Asad, Tawfiqa Yasmin, Sarah Manhaj, Hina Parveen and Rohit come up on the stage for recitation. MD Asad sir, first MD Asad को लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असद है। मैं जेप इंग्लिश मीडियम स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल के 5वें वार्षिक उत्सव पर आप सभी के सामने मैं एक हिंदी कविता पेश करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। मेरी कविता का नाम है मार्गदर्शन। पथ पर बुराई के जो भी चलेगा, पथ पर बुराई के जो भी चलेगा, हानि को अपनी सदैव वो भरेगा, हानि को अपनी वो सदैव वो भरेगा। न दुनिया में होगी कभी उसकी इज्जत, न दुनिया में होगी कभी उसकी इज्जत, न ही जान और माल में कोई बरकत, न ही जान और माल में कोई बरकत। Audience, please clap your hands to encourage them. नफरत करेगा हर कोई उससे नफरत, दृष्टि में सबकी वो नीचे रहेगा, दृष्टि में सबकी वो नीचे रहेगा, हानि को अपनी सदैव वो भरेगा, हानि को अपनी सदैव वो भरेगा। सताता है संसार में जो किसी को, सताता है संसार में जो किसी को, खुदा क्यों नवाजेगा उस आदमी को, खुदा क्यों नवाजेगा उस आदमी को। जो बोएगा काटे तो काटे चुनेगा, जो बोएगा काटे तो काटे चुनेगा, हानि को अपने सदैव वो भरेगा, हानि को अपने सदैव वो भरेगा। बुरी बात है नो निहालो बुराई, बुरी बात है नो निहालो बुराई, बुराई में केवल है जग हंसाई, बुराई में केवल है जग हंसाई, हानि को अपने सदैव वो भरेगा, हानि को अपने सदैव वो भरेगा। बुरे आदमी होके रुसवा मरेगा, बुरे आदमी होके रुसवा मरेगा, हानि को अपनी सदैव वो भरेगा, हानि को अपनी सदैव वो भरेगा। धन्यवाद। इस बाबू का मेरा सर, देखिए मैं ये बच्चे को थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। चाचल कॉलेज के प्रोफेसर साहब साकिब सर के ये बेटे हैं। मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि देखिए बहुत कोई सोचते हैं जो ये स्कूल बहुत छोटा है, इस्लामिक स्कूल है, पढ़ा के क्या होगा। एक कॉलेज के प्रोफेसर उम्मीद करते हैं जो उनको एजुकेशन के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, उसके बाद भी उनको लगता है ऐसा कि नहीं मैं अपने बच्चे को जेप में पढ़ाऊँगा या यहीं पे तालीम दूंगा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप हम लोग के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर ये भरोसा रख सकते हैं जो हम लोग बच्चे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं और आगे जाके भी देंगे। एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर दिस बॉय, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल राइम्स। थैंक यू। नेक्स्ट बुलाइए सर। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম রহিদ আলী, আমি তৃতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র। আজ আমি আপনাদের সবারই সামনে একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতার নাম আগমনী, কবির নাম পেমেন্টের মিত্র। বর্ষা বলে যাবো যাবো সিধা করে দূর, এর মধ্যে মিঠে কিন্তু হয়েছে দূর, মেঘগুলি দূর আকাশে কাশিনাটি ঘুষতে, ঝলকার নাকি যাবে ওরে অন্য কোথাও ঘুষতে, থেকে থেকে তাই কে শুনে বুকে অন্য ডাক,
তাদের আপনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা আকাশ বাতাস আনমনা শুনে কোন ধ্বনি চিহ্নতন হয়ে অচিনা এ কর আমরি ধন্যবাদ। तौफीका यास्मीन सारा महानास हिना परवीन तौफीका सारा महानास कम Assalamu alaikum to everyone. My name is Sarah Mahan. I read in class 3A. Poem আগমনে পবিত্র মিত্র বর্ষা করে যাব শীত এখনো দূর এরই মধ্যে মিঠে কিন্তু হয়েছে রোদ্দুর মেঘরা দূর আকাশে পারছে না ঠিক বুঝতে ঝরবে নাকি যাবে উড়ে অন্য কোথাও খুঁজতে থেকে থেকে তাই কি শুনি বুক কাঁপানো ডাক হাঁকতে যতই হাঁকতে যাবার মধ্যে ভাগের ভাগ আকাশ বাতাস আনমনে শুনে এ কোন ধবনে চীন নতুন হয়েছে এ কার আগমন। থ্যাংক ইউ। सारा महानास हिना परवीन next event call go. Audience, please clap your hands. Now program number 61, an English speech by class 3 students. Now I would like to call Rifat Ali, Abu Sufyan, MD San Reza and Sabba of class 3 come up on the stage for English speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Abu Sufyan from class 3 of Jeff English Medium School. Today we all are gathered here to celebrate the 5th winter carnival of our school. So today on this special occasion of our school, I would like to speak on a very important topic, that is the importance of trees. Friends, just imagine what will happen if there are no trees, no oxygen, no breath, no fruits to eat, no shade to rest under, and the life on earth. Trees are our best friend. Trees gives us oxygen to live, trees gives us fruit to eat, and make our earth green and beautiful. So today, if we destroy trees, nature will destroy our future. So today, I want to make a small request to all of you. Plant a tree and save life, save trees and save our future. Thank you for giving me this opportunity. Our respected principal, teachers and my fellows, Assalamu alaikum. I am Sabba Parveen from class 3 of Jeff English Medium School. Today I want to say about our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah. He was the last prophet of Allah. His father's name is Abdullah and his mother's name is Amina. He belonged to the tribe of Quraysh. He got married to Hazrat Khadija at the age of 25. At the age of 40, he got prophethood. He spread the light of world and at the age of 60, he died. Thank you. What a wonderful speech by given class 3 students. Audience, please clap your hands. अल्लाह ही है जो अंधेरों में भी राहत दिखाते हैं, अल्लाह ही है जो अंधेरों में भी राहत दिखाते हैं, टूटे हुए दिल को भी अपने रहमत से संभाल लेते हैं. Now program number 62 and interesting and enjoyable events prepared by class 2 boys and action song Allah the Almighty prepared by under the guidance of Mehboob sir and Sajan sir. Please bring all your participants up on the stage.
We turn to you day and night, seeking ways from wrong to right. We turn to you in prayer and love, not knowing all the deeds we do. We turn to you endless. क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए। इन नन्हे बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। Turn to you in sheer delight, for truth never strong to fight. Audience, please clap your hands. We turn to your kindness, your mercy and your mildness. We seek your generosity, forget and enter vanity. We turn to you in fullness, in sorrow and in harshness. We turn to you, the only Audience, way please for clap your hands. getting on a good day. We turn to you, most merciful, as in so plentiful. Oh mankind, you wrong yourselves. My mercy is endless. तालियां बजनी चाहिए। क्या हौसला अफजाई कीजिए। Audience, please give a big round of applause for them. कामयाबी सिर्फ सोचने से नहीं, दिन रात मेहनत से कामयाबी मिलती है। कामयाब सिर्फ सोचने से नहीं, दिन रात मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। इसलिए मेहनत करो और एक दिन जरूर कामयाबी हो जाओगे। Now program number 63 and Hindi drama current affair prepared by Neha ma'am. Neha ma'am, please bring all your participants up on the stage. आहिल इस्लाम, वाहिद आयात, रफीक जीमान, आतिक आलम, उम्मे कुलसुम, रहमती, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट इवेंट। आहिल इस्लाम, वाहिद आयात, रफीक जीमान, आतिक आलम, उम्मे कुलसुम, रहमती, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट इवेंट।
अस्सलामुअलैकुम। औलाद अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है और अल्लाह ताला ने इन तोहफों की अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश माँ बाप जैसे आजिम हस्तियों को सुपुर्द कर दी। इसलिए तो अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनाया। मगर आज हम अपने मौशों में नज़र दौड़ाए तो हमारी नज़रों में कुछ माँ बाप ऐसे भी नज़र आएंगे जो अल्लाह ताला के दिए हुए अनमोल तोहफों की अच्छी परवरिश और अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी नहीं निभा रहे हैं। इन तोहफों को कुदरती निज़ाम के मुताबिक देखभाल करने के बजाय अपने आप से घरेलू परेशानियों में उलझे हुए हैं। वो अपने ही घर में अपने ही बच्चों के साथ बहुत बड़ी जुल्म कर रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन झगड़ों के असर इन मासूम बच्चों के ऊपर क्या होंगे। तो नाज़रीन, आज के इस ड्रामे में छोटी सी कोशिश की गई है कि हम और तमाम वालिदान अपने बच्चों की परवरिश को लेकर फिक्रमंद हो जाए। तो चलिए पेश खिदमत है हमारे ड्रामा का पहला मंजर। तंजीला स्कूल की पढ़ाई कर रही है, अम्मी खालिद को संभाल रही है। अम्मी अम्मी मेरे मार्कशीट पर सिग्नेचर कर दीजिए। देख नहीं रही हो, मैं अभी खालिद को संभाल रही हूँ। अभी अब्बू आएंगे, उनसे ले लेना। गरम खाना भी ठंडा हो गया, मैं क्या क्या करूँ? खालिद को संभालूं, तुम्हारी पढ़ाई देखो या घर देखो? जा अपने स्कूल का होमवर्क करो। जी अम्मी। दरवाजे की बेल बजती है। तंजीला दरवाजा खोलती है। अब्बू घर में जाके अम्मी को बहुत काम है, अम्मी ने आपसे लेने के लिए बोला। साइमा साइमा, मैं बहुत थक गया हूँ। तंजीला के मार्कशीट पर सिग्नेचर कर दो, जल्दी से खाना लगाओ। खाना खाना 10 टन पर रखा हुआ है, खा लीजिए। ये क्या, तुमने खाना गर्म नहीं किया? कितनी बार गर्म करूँ? टाइम पर आते तो खाना ठंडा नहीं होता। मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, कोई 5 स्टार होटल नहीं है। तो मैं भी दिन भर ऑफिस में बैठा नहीं रहता, ऐसे ही तुम्हें इतना ज्यादा रुपया ला कर दे देता। ये रुपए सिर्फ मेरे लिए क्या, तुम्हारे घर और तुम्हारे बच्चों पर ही खर्च करती हूँ और हमारी जरूरत पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। साइमा खालिद को अब्बू को देते हुए कहती है, एक दिन घर और बच्चों को संभाल कर तो देखिए, तब पता चलेगा। बेबी क्राइंग। पता चल गया, एक सेकंड बच्चे को लेके खाना भी नहीं खा सकते और इसको लेके मैं घर का सारा काम करती हूँ। अरे कोई तो मेरे मार्कशीट पर सिग्नेचर कर दीजिए। चुप हो जाओ, जाके अपना काम करो। साइमा अंदर से कुछ बिल लाती है। ये लो, मुझ पर एहसान करो। राशन बिल, बिजली बिल, इन सब का पेमेंट कर दो। साइमा, ये भी कोई वक्त है इन सब कामों का? तो क्या अब से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? देखा तंजीला, तुम्हारे अब्बू इस दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम है। इस पूरे घर का बोझ उठाना पड़ता है मुझे। चुप हो जाओ साइमा, कितना बोलती हो? मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो जरा भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बस हर वक्त खामियां ढूंढते रहते हो। सारा हिसाब लिखा होता और आपने इस पेपर को फाड़ दिया। बोलते तो वापिस आ जाती है, अपॉइंटमेंट लेकर। अब्बू अम्मी, अजान हो रही है, अजान का एहतराम कीजिए। देखिए खालिद भी बहुत हो रहा है। मुझे नहीं, अपने अब्बू से कहो। साइमा चुप। बस चुप नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने अम्मी के घर। मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत अफसोस हुआ देखकर। पेरेंट्स अपनी लड़ाई में इस कदर घरक है कि उन्हें खालिद और मालिक की पुकार का भी कोई एहसास नहीं हुआ। और तो और अपने मासूम बच्चों के बहते हुए आंसुओं को देखकर उनका दिल नहीं पगलता। तो चलिए महफिल हाजरी इस ड्रामे के दूसरे सीन में देखते हैं बच्चे की जहनीली हालत और उसके रवैये में आए हुए बदलाव को। क्लासरूम का सीन। टीचर क्लास में दाखिल होती है। सारे बच्चे टीचर को सलाम करते हैं सिवाय तंजीला के।
rahmatullahi wa barakatuh. I am very good student. Sit down. Tanzila, why did you not stand for salam? Sorry teacher, I did not see you. It's okay dear, but next time be alert. Teacher, start with attendance. Roll number 1. Present teacher. Roll number 2. Present teacher. Roll number 3. Present teacher. Roll number 4. Roll number 4. Tanzila, what happened to you? Why are you not answering? Sorry teacher. It's okay. Sit down and stop crying. Lecture is over. It's time for lunch. तंजीला, तू आज लंच नहीं लाई है? इसकी मम्मी ने खाना नहीं बनाया होगा। हाँ, मैंने भी इसकी अम्मी को जोर जोर से लड़ते हुए देखा था। इसकी अम्मी ने कहीं चली गई थी। सच में तंजीला, बताना क्या हुआ था? बताना तंजीला, किससे झगड़ा हुआ था? अब्बू से हुआ? टीचर टीचर, तंजीला ने तानिया का सर। Ya Allah, take her to the staff room. Tanzila, call your parents now. I want to tell them what you have did. Why my parents? This is to please me. अगर फिर से कुछ कहा ना, इन सबका सर फोड़ दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? अभी कॉल करती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को। हाँ, तुम भी मेरी बात सुनो। सब तो अपनी मर्जी चलाते हैं। तुम मेरे साथ चलो प्रिंसिपल के ऑफिस में। आपके साथ नहीं जाना। आप मुझे मारे, पनिशमेंट दे, कुछ भी करे, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं क्यों दूँ आपको पनिशमेंट? अब तो इतनी गुड गर्ल है। अब मेरे साथ स्टाफ रूम में चलो और मुझे बताओ आज इतना गुस्सा क्यों आया है। टीचर समझ जाती है कि बात कुछ और है। तंजीला परेशान है। उसके घर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो गमज़दा है। तंजीला की फादर आई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तंजीला के फादर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तंजीला की अम्मी नहीं आए? वो अब हमारे साथ नहीं रहती। आपको क्या बताऊं टीचर जी, देखा तो समझ कर शादी किया था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी जहन्नुम कर देगी। हाँ, सब तो मेरी ही गलती है। इनसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब टीचर आपसे क्या छुपाना, घर के अलावा पूरे दुनिया के बोझ उठाए फिरते हैं। हाँ, घर के खर्चे तो मायके से ले आती हो। बोल देते, मेरे आपको मना नहीं करते। एक मिनट प्लीज खामोश हो जाइए। आप लोग दो बच्चों के वालिदैन होकर भी कभी सोचा है आपका ये रवैया बच्चे के ज़हन पर क्या असर कर रहा है? तंजीला का रहन इतना बदल गया है कि वो अब गुमसुम रहने लगी है, या तो फिर वो गुस्से में। आज तो एक लड़की को ऐसा पुश किया कि उस लड़की का सर फूट गया। हमारी झगड़ों की वजह से बेटी ऐसी हो गई है, अब लड़ने लगी है। अब तो इनसे मैं तलाक लेकर ही रहूंगी। हाँ, कौन लेना चाहता है तुम जैसी नासमझ औरत के साथ? तलाक लो और मेरा पीछा छोड़ो। टीचर जी, मेरे झगड़े तो ऐसे बोल रही है जैसे ये अल्लाह ताला की गाय है। मुंह में तो इनके जवाब है ही नहीं। कल रात ही लड़ी थी औरत मुझसे। यही समझाने बुलाया था आप दोनों को कि ऐसे माहौल की वजह से तंजीला मेंटलिटी डिस्टर्ब रहने लगी है। पढ़ाई में से उसका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। वो मिसबिहेव कर रही है। और आप दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं, वो कि किसी गलत राह पर भटक जाएगी और चाह कर भी वापस नहीं आएगी। खो दोगे आप अपनी औलाद को। अपनों ही बच्चों के दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं? क्यों, आखिर क्यों? टीचर जी, हमें अपनी गलती का एहसास कराने के लिए शुक्रिया। मुझे माफ करे। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैं वादा करती हूँ आपसे कोई झगड़ा नहीं करूँगी। अपने घर को वालिदे नूर बनाऊंगी। अपने बच्चों की मुस्तकबिल को और हमारे नबी की सुन्नत को जिंदा रखूंगी और हम रोल मॉडल फैमिली बन के पैगाम देंगे। साइमा, तुम भी मुझे माफ कर दो। थैंक यू सो मच टीचर। क्या आप तंजीला को बुला देंगे? पियोन। जी टीचर। तंजीला को बुला दीजिए। ठीक है। तंजीला बेटा, हमें माफ करना। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा है।
अब से मैं, तुम्हारी अम्मी और खालिद बहुत प्यार से रहेंगे। नो झगड़ा, नो मसला, ओनली हैप्पी फैमिली। तंजीला खुशी खुशी अपने अम्मी और अबू का हाथ पकड़ लेती। याद रहे, अच्छे वालिदान की दुआ और रहनुमान से ही बच्चों के मुस्तकबिल रोशन होते हैं, क्योंकि वालिदान की ताज़ा मोहब्बत सफाकत कामयाबी की बुनियाद है। रब्बी जाअलनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती। आमीन। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आमीन। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अच्छे वालिदान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हमें सब्र, मोहब्बत और हिकमत के साथ अपने औलाद के सही तरबियत करने वाला बनाए। आमीन। हमारे बच्चों को नेक शौले और दीन पर चलने वाला बनाए। आमीन। नेक या रब्बुल आलमीन। See, I want to do one announcement. देखिए, कुछ बच्चे हैं क्लास 6 के और क्लास 7 के जो हॉस्टल में रहते हैं, इस टेंट से बाहर चले गए हैं और वो गार्जियन गेट पे जाके हल्ला कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपका बच्चा 6-7 में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, अगर वो टेंट फाड़ के बाहर निकल जाए, वो भी जिम्मेदारी स्कूल का है क्या? टीचर्स लोग वहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, आप जाके टीचर्स को बोल रहे हैं तो बात। आपके बच्चे को पहले पीटिए अच्छे से। आप क्लास 6-7 में बच्चा पढ़ता है, इट्स ए ओपन ग्राउंड प्रोग्राम। अगर आपके अंदर इतना समझ नहीं है तो बहुत मुश्किल वाली बात है। टीचर्स लोग वहाँ पे सुबह से खड़े हैं, वहाँ चेयर पे बैठे भी नहीं है। अरे आप लोग ये मत समझिए कि वो आपके नौकर हैं, वो टीचर है यहाँ पे खड़े होके। उनको जाके गार्जियन लोग उल्टा सीधा बता रहे हैं। बच्चा हॉस्टल में रहता है, क्लास 7 का बच्चा है, 5 साल से यहाँ पढ़ रहा है, अगर वो टेंट फाड़ के बाहर कहीं निकल जाए, वो भी जिम्मेदारी हमारा है क्या? अरे ये तो समझने वाली बात है। एक प्रोग्राम चल रहा है और गार्जियन वहाँ पे हल्ला कर रहे हैं बेवजह। देखिए इस तरह का लेकिन बिहेवियर बहुत ही खराब चीज़ है। एक ग्राउंड पे ओपन प्रोग्राम हो रहा है, आप वो बच्चे को देखिए बुला के यहाँ पे लाइए, उसको अभी उठक बैठक कराएंगे, जिंदगी में बाहर कभी नहीं जाएगा। आप लोग का ये सब पढ़ा हुआ है बोल के बच्चा ऐसा कर रहा है। एक क्लास 7-8 का बच्चा है, हॉस्टल पे रहता है, इट्स ए वेरी कॉमन सेंस। वो ग्राउंड से अगर कहीं साइड से बाहर निकल जाए, वो भी जिम्मेदारी टीचर्स का है। इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 7-8 दिन से टीचर लोग एकदम नॉन स्टॉप काम कर रहा है। देखिए इस तरह का अगर आपके अंदर ख्याल है कि हम यहाँ पे सैलरी पे करते हैं, टीचर्स को खरीद लिए हैं, ये बहुत ही खराब चीज़ है। ये बहुत ही छोटा सोच है आप लोगों का, कोई सोच रहे हैं इस तरह से। अरे एक प्रोग्राम हो रहा है, नॉन स्टॉप दे आर गिविंग फुल सपोर्ट। इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना जो करता है उसको पूछिए कितना टफ है। गेट में 2-3 गार्जियन वहाँ पे खड़ा होके टीचर्स लोग को उल्टा सीधा बता रहे हैं। अरे हम लोग का जिम्मेदारी है, हम लोग मान रहे हैं। सुबह से मैं माइक्रोफोन में बोलता जा रहा हूँ कि अपना बच्चा अपनी जिम्मेदारी में रखिए। जो हॉस्टल का बच्चा है वो साइड पे बैठा हुआ है, अगर वो बाहर से निकल जाए तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एवरीथिंग वी कैन नॉट लुक आफ्टर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इवेंट, एक्शन सॉन्ग ए मर्द मुजाहिद, बी रेडी एंड कम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्पेशल इवेंट, एक्शन सॉन्ग ए मर्द मुजाहिद by class 7 boys, mentor Shakil sir, please come up on the stage। और सर अगर वहाँ पे आतिक वाहिद आए, उसको लेके यहाँ पे प्लीज आइएगा एक बार। एक क्लास 7-8 का बच्चा है, यहाँ 5 साल से पढ़ रहा है। इट्स ए नॉर्मल सेंस है कि हम लोग उसको भगा दिए कहीं पे क्या? अगर वो मार्केट निकल जाए साइड से तो हम लोग क्या करेंगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक गार्जियन को ये रिक्वेस्ट है, हम लोग भी एक काम कर रहे हैं, इतना सारा गार्जियन यहाँ पे आया हुआ है। वी हैव टू कंडक्ट द प्रोग्राम इन ए नॉर्मल वे, वी आर ट्राइंग दैट। अगर इतना भी आपके अंदर से अगर कोऑपरेशन नहीं आएगा, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इवेंट, एक्शन सॉन्ग ए मर्द मुजाहिद बाय क्लास 7 बॉयज, मेंटर शकील सर। रेडी सर? सर रेडी? प्ले द म्यूजिक प्लीज। तेरी अलवार कहाँ है? तस्बीह तो है हाथ में तलवार।
हेलो Hello everyone. Good afternoon. This is Ghulam Murtaja, the teacher of English 1 of this schools, Jeff English Medium Schools. You became boring after sitting in a place, so I want to change your moods. Let me chance. I had to tell you something. You know, I am a teacher. We are teacher working here together. After the birth, a child, he or she stirs their parents. Do you know? The mother is the first teacher of the child. That is why she or he knows her parents fully. But don't forget, my dear friends, the babies, I mean childs, try to follow their guardians. What is my father's doing? What is my mother's doing? So it should be more careful to us as a parents that we have to good works. We have to good behaves before our children. So, education is not only in the books, but education is everywhere. Education is here and there, but we have to gain knowledge. We have to do good activities. We have to give the society some special gift. Do you know, we have to die. Kullu nafsin jaiqatul maut. But remember, we can give the newcomers a new and better environment and future. So, family is important to make the child's future. Family is the primary social organization. Next social organization is school, where we work. So the school has some features where a child develops through mixings with their friends, with their teachers. They keep their disciplines, rules, and they follow their teachers. Do you know, I am talking about my school, Jeff English Medium School. Do you know, I appointed last year, and I started to knowing these schools from the beginning, although I did not get chance, but I had it. This school is a very good school in our areas. Do you know? The school has a very beautiful background. The school has many more teaching and non-teaching staffs and sufficient space and good systems, good faculty, disciplines. Basically, I want to tell you, this school has Islamic base. Do you know? Islamic base is important to make our life better. If you don't have the knowledge of Quran, if you don't have the knowledge of Islam, you will not be valued to the Allah. And here we watched that the teachers make them ready and keep them ready for the namaz from Johor to Isha. There's a very good things, do you know? Not only but also, in every problems, the teacher of our schools are ready to solve.
Now, you means dear friends, sends your children to these schools with a great hope. Am I right? That my child will be a good man, as famous men are good ideal citizens in future. But here, we are trying to utilize your dreams. We are always trying to solve the students' problems. One day, I was taking in class in class 6. Suddenly, a student became sick. Suddenly, the students fell down from the bench. I requested the girls to save. Then, she was saved by them. And I told the students, what is the problem? She was so sick that she was to speak to me. Then I called the female teacher and sent them, and then to the principal sir. Do you know our principal sir? He is a very strict, disciplined, Audience, but clap your hands. soft-hearted. Do you know to running organizations, it's a normal matter. He should be strict, polite, humble, and soft. Then our respected principal sir called their guardians, and guardian came, and they took her to their house. So the appreciations of these schools are good, and I like it. I thankful to all the audience here. Many guests participated, guardians, chairman, and respective principal sirs. Again, I want to give especially thank you them. Thank you, sir. Thank you so much. They gave me a chance to speak something on the stage. Do you know, there is a word, knowledge is power. Knowledge is power. It is spoken by Bacon. Do you know who was Bacon? Francis Bacon, a philosopher, great scholar, and appropriately said that knowledge is power. Why? Knowledge or education can change the world. Education can change not only the society, education can change whole the world. So education is important to us. Next, phase, I want to